Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will be learning about the topic respiration, which is a very important topic from the chapter life process. So let us see what this is and what we mean by respiration, how it happens, what is its advantage. So now in our previous videos, we had talked about the nutrition, which was also an important life process. And in the topic nutrition, we had seen that when we intake our food, then the complex food material is broken down into simpler substances, and those simpler substances are absorbed in our body. Now, why we are taking in food? Because we need energy. And in nutrition, we had seen that in nutrition, we had only digested the food we had taken and broken down it into simpler forms which are absorbed by the body. Now, what will happen after that? When the food has been broken down into smaller particles, then that food material, which is now we say glucose, that is transported to each and every cell of the body by the blood, and in each of the cells, this glucose is oxidized to produce energy. So, respiration is the process of breakdown of glucose to produce energy. सिंपल कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज से हम एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, है ना, वो हमारा प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन. सो इट इज द breakdown of glucose to release energy. ठीक है. अब ये जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ये या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से भी हो सकता है या तो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. दोनों में फर्क इतना है कि जब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा उस केस में कंप्लीट डायरेक्शन नहीं होगा और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी दैट विल बी लेस. वेयर एज इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in that case there will be occur complete breakdown of glucose and more amount of energy will be released. So depending upon the presence or absence of oxygen, the glucose pathway has been divided into 3 parts and we will see it now here. So what will happen? This is our glucose and this converts into, first of all, pyruvate. So glucose is a 6 carbon molecule. We know it is C6H12O6, whereas pyruvate is a 3 carbon molecule. Means one molecule of glucose will give rise to 2 molecules of pyruvate, and this process occurs in cytoplasm. Okay, this process occurs in cytoplasm. Now what happens after this? There are 3 pathways. This is very important and many times questions come from this graph. So let us see what happened. So now what happens? There will be 3 cases. First is in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. Second case is due to lack of oxygen. Due to lack of oxygen. And third is in the presence of oxygen. Okay. Now, what will happen? In the absence of oxygen, complete breakdown of glucose will not occur and it will lead to the formation of alcohol plus CO2 plus energy. When lack of oxygen occurs, in that case, lactic acid is produced. Lactic acid plus energy. And when the glucose is broken down in the presence of oxygen, then complete breakdown of glucose occurs and it forms carbon dioxide, water, and energy. Now, this, in the absence of oxygen, this case occurs in yeast. Okay, and this process is known as anaerobic respiration. This lack of oxygen, it occurs in our muscle cells, and this occurs in our mitochondria. Mitochondria are specialized cell organelles
which are also known as the powerhouse of the cell. Why? Because energy is released here in the mitochondria. So therefore, mitochondria are known as powerhouse of the cell. And this process is anaerobic respiration. This process is aerobic respiration. Okay. So as we see that yeast or other microbes, they require less amount of energy. So in their case, anaerobic respiration works for them. But we humans, we need more amount of energy, and in us, aerobic respiration takes place. And what happens in muscle cells, why this occurs, lactic acid occurs, what happens when we do exercise. या जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम खूब तेज दौड़ रहे हैं या खूब हमने एक्सरसाइज कर ली, उस केस में हमारे मसल्स में जो क्रैम्प आ जाता है, वो इसलिए होता है कि जब हम रनिंग या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो सही से सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए कह रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है और उसी समय हमारे मसल्स में क्रैम्प भी आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे मान लो हमने बहुत तेज दौड़ लगा ली या हमने कोई हैवी काम कर लिया, तो जो हमारी सांस फूलने लगती है, जो हम हांफने लगते हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसको पूरा करने के लिए हम मुंह खोल खोल के सांस लेते हैं, है ना, जिसको कहते हैं सांस फूलना, वो इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक यानी कि कमी हो रही है बॉडी में ऑक्सीजन की, जिसके कारण कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज का, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं और हम रुकते हैं। ठीक है, अब जब हमने ये देख लिया कि हमारा जो रेस्पिरेशन है या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, तो जब हमको एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे, उस केस में हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे अपने पॉइंट पर चलेंगे। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना, जो हम सांसें लेते हैं वो हमारा हो गया ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या हो गया? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब जो हमारा ब्रीदिंग है ये केवल एक क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो दिस इज ओनली ब्रीदिंग। लेकिन ये जो हमने सांस ली और इससे जो ऑक्सीजन गया हमारे बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन ब्लड जो है पहुंचाएगा हर एक सेल्स में, और फिर वो सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगी। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, यह हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये सेल्स के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है वो टूट रहा है, इसीलिए जो रेस्पिरेशन है इट इज अ सेल्यूलर प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और क्या हो रहा है? जो हमारा ब्रीदिंग है ना, यहाँ पर केवल लंग्स जो है वो यूज हो रहे हैं, है ना, नोज और लंग्स केवल यूज हो रहे हैं, ये पूरे बॉडी में नहीं हो रहा है, पूरे बॉडी के हर एक सेल में नहीं हो रहा है। और रेस्पिरेशन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी इन ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, ब्रीदिंग में ओनली फ्यू ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, लेकिन रेस्पिरेशन में occurs in all the cells of the body, occurs in all the cells of the body। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया कि ब्रीदिंग हमें क्यों चाहिए, है ना, ब्रीदिंग किससे हमें चाहिए?
ताकि जो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, वो इस ब्रीदिंग के मैकेनिज्म से आ रहा है। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हर एक सेल में हो रहा है जहां पर जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो गए, ग्लूकोज टूट रहा है, CO2, H2O और एनर्जी निकाल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं जिसके लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैसे होता है ना, और ऑक्सीजन कैसे हर एक सेल्स के पास पहुंचता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, है ना, तो सबने देखा होगा, सबके घर में एक्वेरियम होगा, या एक्वेरियम जिसके घर में नहीं भी है उन्होंने भी एक्वेरियम कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो वहां पर क्या करते हैं, एक पंप लगा रहता है जिससे कि ऑक्सीजन का पंप जो दिया रहता है, और उस केस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजोल्व किया जाता है जिससे कि जो मछलियां हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन ले सकें। लेकिन उस केस में क्या होता है, उनका जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज फास्टर। क्यों? क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में दैट इज इन द लेस क्वांटिटी। तो अगर कोई चीज कम है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा बार उनको ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो इन एक्वेटिक एनिमल्स कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इज ब्रीदिंग हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स। सो aquatic animals use the oxygen dissolved in water। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन का डिजोल्व है वाटर में ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, hence the rate of breathing is higher in aquatic animals। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स का हमने देख लिया कि वो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसे लेते हैं, और फिश जो है वो गिल्स के थ्रू उनको पास करती हैं जिससे क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपने सरफेस में क्या करते हैं, उनका सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और कैसे होता है। तो ह्यूमन में क्या होता है, ठीक है, ये हमारी नाक हो गई। ठीक है, देखो बच्चों, डायग्राम जो होता है कई बार कई सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है डायग्राम बनाने में, है ना। लेकिन आप डायग्राम बना रहे हैं, आप कोई आर्ट नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए इतना सोचना नहीं है कि आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो क्या कि आपका जो डायग्राम है वो प्रोपोर्शन में हो, प्रोपोर्शनेट लगे, और जो आप समझाना चाह रहे हैं वो आप दिखा सके अपने डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, इसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, ये पोर्शन कहलाएगा क्या, ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप। और ये जो पोर्शन है, ये जो लाइनें हैं, ये क्या है, दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, और ट्रैकिया के बाद क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये फाइनली एक बैलून शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं क्या, एल्वियोलाई। और ये क्या है हमारे, दीज आर लंग्स। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी हमें रिलीज करनी है। तो अब ऑक्सीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, वी इनहेल। ऐसा इनहेल किया हमने, तो हमने क्या इनहेल किया, हमने जो हमारा एयर है वो हमने इनहेल किया। ठीक है,
अब इस एयर में आप जानते हैं कंसंट्रेशन क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, ये सब आपको पता है। अब हमारे बॉडी को चाहिए केवल क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने इनहेल किया तो कई बार ऐसा होता है कि हवा में भी कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उस केस में जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, है ना, जो हमारे नाक के छेद के अंदर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं और कुछ म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको जो हमारी नेजल हेयर्स होंगी और जो अंदर म्यूकस की जो लेयर होगी वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगी, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स का काम क्या हो गया, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स का काम हो गया ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद वो जो एयर है वो अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर जाके वो अब हमारे लंग्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब बीच में ये जो फेरिंग्स और लैरिंग्स है इनका काम है हमारा, लैरिंग्स वजह से वॉइस बॉक्स होता है, उसका रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में इतना रोल नहीं है। लेकिन अब ये जो हमारा ट्रैकिया है जिसको हम क्या कहते हैं, फुट विंड पाइप, है ना, ट्रैकिया को हम कह रहे हैं क्या, विंड पाइप। यहाँ पर जो सी शेप कार्टिलेजनस रिंग है इनका काम क्या है, इनका काम है जो ट्रैकिया जो हमारा पाइप है उसकी जो शेप है उसको मेंटेन रखना। ये जो सी शेप कार्टिलेजनस रिंग है, दीज रिंग्स विल मेंटेन द शेप ऑफ दैट विंड पाइप। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि अगर जो हमारा पाइप है ये विंड पाइप वो हॉलो है, अगर हम कोई चीज सक कर रहे हैं, ब्लो आउट कर रहे हैं, उस केस में ये जो पाइप है ये अगर क्या हो जाए, आपस में चिपक जाए तो दिक्कत हो सकती है, एयर फ्लो जो है वो रुक सकता है। इस केस में जो सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स हैं ये क्या करेंगी, ये इस पाइप का जो शेप है वो मेंटेन करके रखेंगी, ठीक है। और अब क्या हुआ, हमारा जो एयर है वो धीरे धीरे आया कहाँ पर, हमारे एल्वियोलाई के पास। और ये जो एल्वियोलाई होते हैं, दीज एल्वियोलाई आर बैलून शेप स्ट्रक्चर्स। और ये जो बैलून शेप स्ट्रक्चर होते हैं यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमने एयर को ब्रीथ किया उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा ऑक्सीजन। और जो हमारे बॉडी में जब हमारा ग्लूकोज टूटता है तो क्या बन के आता है, CO2, और उस CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो CO2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई बैलून शेप स्ट्रक्चर है ये इसलिए है ताकि ये जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा सके, ताकि अच्छे से हमारा गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो हमने जो एयर ब्रीथ किया वहां से ऑक्सीजन केवल आ गया हमारे एल्वियोलाइज में और CO2 जो है वो चला गया बाहर, जो हम फिर एक्सहेल आउट कर देंगे उसमें CO2 निकल जाएगा। अब ये जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज जो हुआ कि कैसे हुआ कि ये जो एल्वियोलाई है दीज आर लाइंड बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हीं से ऑक्सीजन और CO2 जो है वो हर हमारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब जो ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे, ये इस ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे हर एक सेल के पास। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन जो है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, तो ब्लड भी हमारा क्या है, फ्लूइड है। तो उस केस में हमारा जो ऑक्सीजन है ये ब्लड से कैसे जाएगा हर एक सेल के पास, उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है, सब जानते हैं उसे, क्या है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन का है हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करके हर एक सेल्स के पास लेकर जाता है ब्लड में। अब जब यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड ने ले लिया, हीमोग्लोबिन ने ले लिया उसको और हर एक सेल के पास लेकर गया। अब जब हर एक सेल के पास जब ये लेकर आया तो मान लो यहाँ पर सेल्स है जिसके पास ये लेकर आया, सेल्स में जब लेकर आया इसने ऑक्सीजन दिया और सेल्स में क्या होगा, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और ग्लूकोज जो हमारा है वो कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 वाटर और एनर्जी में। अब इस CO2 को वापस ब्लड ही लेकर जाएगा, तभी ना यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन हम ज्यादा बता रहे हैं, तो इस CO2 को ब्लड लेकर जाएगा एल्वियोलाइज में, और यहाँ पर जो CO2 है दैट विल ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इन डिजॉल्व फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो CO2 है इट इज इजिली डिजॉल्वेबल इन द ब्लड, है ना। CO2 जो है वो इजिली डिजॉल्व हो जाता है फ्लूइड्स में, ब्लड में, इसीलिए CO2 जो है वो ट्रेवल होता है डिजॉल्व फॉर्म में, और ऑक्सीजन
क्योंकि डिजॉल्व नहीं होता है तो ऑक्सीजन कैरी होता है किससे, हीमोग्लोबिन से। तो जब यहाँ पे हमारा ब्लड आया तो यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसने एक्सचेंज करके दे दिया, हमने एक्सहेल कर दिया CO2। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ब्रीदिंग की तो हमने ऑक्सीजन ले लिया और CO2 दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट ब्रीदिंग में वापस ये करेंगे, नहीं। क्या होगा, एक रेसिडुअल अमाउंट है ऑफ एयर हमारे लंग्स में हमेशा रहेगा, ठीक है, एक रेसिडुअल अमाउंट हमेशा रहेगा, जिससे कि ये जो एक्सचेंज है ये लगातार होता रहे। नहीं तो क्या होगा, ये जो लंग्स हैं ये क्या होंगे, ये दे विल कोलैप्स, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हो गया कि ऑक्सीजन कैसे हर एक सेल्स के पास जाएगा, और जब सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच गया then that oxygen will be utilized for the complete breakdown of glucose to form CO2, water and energy, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब अगर प्लांट्स की बात कर लें कि प्लांट्स में कैसे होता है ना, तो रेस्पिरेशन तो प्लांट्स में भी होगा, वो कैसे होगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब अगर डे टाइम की बात करें, है ना, दिन की बात करें, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रही है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे मान लो हमने स्टोमेटा बना दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसने लिया क्या, CO2 लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, लेकिन यही ऑक्सीजन प्लांट्स भी तो यूटिलाइज कर रहा है रेस्पिरेशन में। मान लो रेस्पिरेशन भी यहाँ पे साथ साथ हो रहा है, मानना क्या है, हो रहा है रेस्पिरेशन भी यहाँ पे साथ साथ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये रेस्पिरेशन में भी यूज हो जा रहा है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जा रहा है। लेकिन अगर हम रात की बात करें, रात में बात करें तो रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है ना। और देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये यूटिलाइज हो गया यहाँ पे, और इसने जो CO2 भेजा, CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, ठीक है। लेकिन रात में क्या हो रहा है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, केवल क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, O2 यूज हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है ना। तो रात में इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, या रात में जो मॉर्निंग वॉक बोला जाता है, वो मॉर्निंग वॉक क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप रात में सोचें कि रात में हम गार्डन में टहलें, वहां पर आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, रात में केवल जो CO2 है वो रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन का। हमने रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ लिया और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, please do write your questions in the comment box. I will try to answer those questions. And if you like my video, please share it with your friends. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe it now. Thank you.